Haram chaksir penang na sima sakanti ko niya dal ni ketal ka video na di mana sima sakanti saprakan nami dong thukia niya ka dong aro bibira di mana penang dal ni video ko nga dengka man sina sima na rabaingon ayan ge san sini wa daw school student na khat tarik barang ni kuman na sima na aga naskia aro mi jaw batang kaman video banga iya ini kuman aga na tachem aro sabarang ni kuman sengatnya di mang sabas niya banu tharina mangen saba niya maid ki tharina mangen ni mana penang ya chugumu video ko nina aro na simang masina skang ba ana simang kon di molmola skinga na simang saubarang angni channel ko talong imna ibak brong dongeng chumudi channel ko skang pa subscribe kaimna daksake donat chengbo ni jamano bell icon ko step ko all ngaba ko stepi donang pabomo jera kode angni channel ngam mancar kemba na simang jen salwanga na simang na video tharigen ya bell icon ko step ni jamano de na simang na tharakin notification nang ko na simang masuna ta magen mo ni mana penang video di dalte digong ya ya anga mija batang ban somoyo video ge sa thariachem ya da school student nang ni gaman school student nang ni gaman bisa card ko ba id ko thari namo tadi chamchi pe ya card ko bano main ki thari gen aro maina thari na nanggen aro thari na nangjagen ini gaman na bang jana simang na agana piya aro ya ko thari ora namgani onggen ma ya thari iko thari ora namgani ra ongjaw ma iko alo na simang ya video agana pian aro wiat ken nem ya dengtang mansa na simang na ya video thari ngon penang na simang ongjar ki chanchina be darang nanga negative kana ba negative mai bana anga thari ja mana jeko nanga nakka haru masya haru winga ukusan asimana sekaya haidas angni wigba sanaba onggija ongna badunga ba sani sanaba wigijani ongna badunga demang angni uyani kita anga tharinga neba negatif asimang janchi banabe mo jeko nanga winga ongjari ongja jata ibo ongadunga ongani agana taibo unari mamang namjani ongjaba neba negatif komen ako kapanabe mana negatif komen ko khana gata anga asimang na mamang onggijara kako na asimang na thariat jainga bangbada mandirangan video ko nami ni chengija janchi tongsarang sali nimungba negatif nangko agan wamo. Ini merpena dal ni video dian na simang na agan ngon. Je lako dia school student nang namo. Class 1 ni bong jamaina, class nursery ni bong jamaina, class 1 2 3 di laki bong jamaina ba nege graduate bong jamaina, tabar kian sini college di bong jamaina, university raun nap bong jamaina. Dengtang biawo nap kepanan tadi mana kana? Gopenara khat gesa ko thari ha. School lang na bang jamaina. Jirak ba student nang na bong jamaina. Ko card gesa ko thari awara card ara maina anseng afar id ni bagana nemang abc card ni bai ko nagana ne abc card ni bai ko nagana afar id ni bai ko nagana abc id ni bagana ko ne tauder penang nasimang namni chanchibo aro iya video ko nasimna thalatingon namni chanchibo ne mija video den dibang ko nakchegani gumon tha thandingin thari ta ha nibang jensal ko namni gapan agan gapas ki parang ni mai ko niani jamano de antang bon sia dengtangi reki chanchim bad alo dabana simna video thari ta ni afar id ra ansengna nangchong motama 정말 야 아파라 아이디 코야 미샤랑나 바 스쿨 나고 스튜던나 낭총 못다마 야라 이코 다리오라 안청나 남근이 공겐마 마 안청나 남기자니 공겐마 니바 묵쇼아니 코 나시망 잔치 쟁벌 빼나네 제랑은 니야 쯤 비디오 코 잔치 쟁벌 니몽 비디오 바크로 나바동아 원디가 아로 sakses 키 급하니 sakses advocate 니 아간 급하고 나시망 나가 비디오 나겐 비디오 바크로겐 가니 아바칭은 비디오데 바크로겐 니바 나시망 마 시네스 겐츠 모데 비디오 코 니앙 파보 아로 마시라보 야라 옹총 못다마 다리나 앙총 못다마 낭총 못자모 dau guteke school lango bano bade haida man khujengen ikon dau de yaden diba dau run ja yang ba belsi rangon government de ko issue khaman jok arong bani ongbai nga bano bone sukinga anda ki mang dau de ya khat ko thari paranga dingthang benefit ko man gen ya ganamo sanse pe wa na khales na parang ongen chumude badia ba khales na transfer ongen chumude ba badia ba state china foreign ko parang ongen chumude urang na dingthang benefit ko man gen ya ganamo aro dau yo scholarship rang na dak chakan ongen ya gana ndike mang wa saksa advocate non nansing mana ukil ni masimo wa masih ba mandi aru igo ba mandi saksa aru niam ni bun masih ban mandi wa ni agana ni ko nasimang nanga watatken video de bakrogen nasimang sakchikin yang bo masih kebarong ken semodimo nemang nami ni gija video ko sali ni mungmande onggi jadi agan panabe maina angni masih kata ya ko anga ongi niki bang gija niki nasimang na agar tian diungjan di ba masih la phachina nisa anga jikon niking aru winga ukun nasimang na share kapai ngagani wan dike daudi ya apa idea na maina kaner penang student saksani dokumen ba student saksani data nya kan gen mo data chugumuk storong gen ne wa data chugumuk storong gen ni mana skulo mai dakinga na marksheet batan ni batang ma ninga aro nakni remark mai dakyong inga aro nakni skulo ra rank mai dakir inga aro nakni bewalrang mai dakir ye chugumuk skulo na sing record ong mo ba na skulo attendance batabarang ni donga belsio ko ansing chugumuk record skulo nong ya college nong ya ni chugumuk data ansing ino storong gen storong na ni ongani jamana ya nakni ID card ko mung chigini digit ni number donggen ya kon maina ansini wa Aadhaar card to je khayo na wa ndigir number ongen mo number ongen ni mo wa chine data chugumukte student ni data gamukte ye storong gen ni mo ye storong gora mai kana wa digilocker ba digilocker je ko aro ba sabari ko dialocker ni ba kana digilocker je kon digilocker wa storong igen mo tao de skango ansing erpe na wa Aadhaar card ko ansing mai kha jia mandirang mo
wa nan batang phuli juga de ni bana simai ko sanchini nan batang phuli ha आधार कार्ड को अंजों माइ दकी जीजा छादोक सतोक टोक ना माइ ना हाबी जाबी हेन ना सिनन जियान दिबो माइ रकाना अंचिं दे कुरे नांथे लिंगा खाना नांगाय जक माइ ना कुसा कोनी अंचिं को ब्लोइंग प्रेशर खाइगा मो कुसा कोनी ब्लोइंग प्रेशर खाइगा कुनी मा अंचिं दे गमक को दकोन जॉब कार्ड खागा बुंग जमाइ ना ओ बैंक नि किता बुंग जमाइ ना स्कूल ना बुंग जमाइ ना आधार कोरे खाना नांथे लाय हा वनी प्रेशर खानी गमन अंचिं खाना नांथे लांदी बा अंचिं नि मा सिगमन मानदिरां इनि गमन दारां बा कुरां उनजामो कुरां उनि बो मानजा निगे मो अपसान दकी या स्टूडेंट नंगा बाया नकाबा प्रेशर को मातना सिंगार पेंगने ये निगे प्रेशर को माना सिंगा माइना इको थारी जाव दे haida da ongja na badonga ambono iko thari gi jag barang de haida school ina manjawa school napna manjawa wanda ko ba khatna khatna badonga ba idau na ting kinga ada donggi jag barang de school na adar khat nanga na mai khat nanga na thari na nang thelinga mo tongpa gi jarang de getek da thari ne tangka ba sablungi nanga wan digi ambono antung ina ba pressure ongge ndi mang ye ni nang gapa khatha ro ye ni tu ba na ko khangpa ma siwo antung ni jakat delani ni no dongjawa ne erpena antung ni student nang ni jakat delani dongjawa na a school lo belshio nakna wa jekona vaccine ni ibayamu vaccine sio ma suja amai vaccine ku suinga aro nakni particular nang mai dakti na donga aro nakni school lo attendant na baita salong inga ye chu gemek datan ya karto storong imna digi lokaro yang gen ndi baya digi lokaro badi tan kan antena privacy ko ninga antene ma sija badi tan kan antena secure ko ninga ko antene ma sija mai bakai leak na ngore mai bakai ya privacy dang heka dang ni jako yang ko di antene jangi tangani de borbat tem ong teling ar peng ne maina na haida garang dak li mung ba sa forai ko chu bong angani jamano nakni privacy rang nakni data rang skatang li kong pe petang ko de skatang nakni ko sako sau ba saja scam khana nanga hode uno de anching na blongin dala mandagani aro kinani de donga jira ko de wa data ko sana ba mai barki she khagak man na sabal li khana hek khana nang do de ina ban ti kenso ani ba banu bade parents meeting nang wati ni bun agani thari khana agani amo andi gemang janchi ja anching ske forai dongi jagore masija benefit ko san niya antene mangani ko san niya ne mangani ko san niya ini zaman umay onggen ongdagen ko masija bekangci main ko masija ndiba uni gemanen ang ni agan aba minute batabarang ong pling ha ndi mo advocate saksani agan geba khatharang ko na simana watatna miya na simang video niangbo dema ang ni agan ndi non aigen bon khamo dang agan jong jawa video rogen haida video de kanta sarang bong na badong ar penang ndiba na simang chugumak ini gun masibo ya de ong chomat ken ambuna angna mandak geba sokpa thelna ba donga anga banga video ko thaknya mana angna mandak ani sokpa thelna ba donga ya de mai rakani gemana mana je kaya angna adar khat ko skang je galachan wan din haida sawadi ko andi banga dam thang idin thai jaha mana ya apar id card ngaba ko niyaton one nation one student id ko mo one nation one student id iko chancheti nyodina ba anjing batang gamun somoi rango anjing ni central government mai ko de pressure khajamo one nation one election na one nation one religion nan ko thari na uniform civil code ko thari na dang chanchia pani dingdang dang jegalan ko mani rangko manjai ba daw ya student nang ni mai ba o daw di ko thari aw ka dan kajok maina chon ga ba ko create ka chingen ini jamano ye create ka ago ko chumong isa wa bisuni muksungani ko de nu chuwat ken wan dagi taki cha cha de kajok di bang na simang repena na simang nisu kurang mai dikin ka uni na simang masi rangbo anga na simang ya screenshot na tinga ya ni mai ban ni ko ya apara di khat ni noksa ko na simang nyangbo di mo advocate ni agan ko pa advocate no dan tinga masi bo ukil mo biade niam ni mon masia aro niam ni mon iko pa mandi ya namme dikin thala tani ko na aru ya tani ko na niba khabu khajabu khode darang ko ba drana de manja na namna ka ode na ni gaman we no tram en condition donga pa na ko dakken sim ode na jamano jaulo ongi je takung ba na ini gaman agan na di manja ne epena uni gaman advocate saksani agan ga bani khatarang ni gaman asimang chanchi nyangbo aru video ko nammi nyangbo machines gen sim ode aru ini gaman winners gen sim ode yara namma namja ko machines gen sim ode na simang botni nyangbo video de bakrogen nimang na simang uirana ke barong gen sim ode alwa jengni bisarang nambono mai dak bong gen ko machines gen sim ode na simang iko kasapa nyang pabo maina ya anjingni ma sirani aru uirani ongane ni ban chinde mangeni ko mangen gabani gaman bang batan changaya ni baja manu mai dak ko bostong gen ko darang ba agan na di manjar penang ne nemang dalni yang ni video yarang san aigen na simang nanga ya video ko batatnya na simang video ko nyangbo ya advocate saksani agan ko katharang ni gaman metela sakan tikon video ko chaksiki ni अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आप किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप लोग गहराई से समझे बातों को और आने वाले समय में आपको जिन चीज़ों के लिए बताया जाएगा, जैसे कि आपको कुछ नई ऑफ़र्स
या फिर कहें तो नए आईडी कार्ड के लिए सरकार के द्वारा या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा अगर आपसे बातचीत की जाएगी तो आप इन सब बातों को समझते हुए ही अपना निर्णय लें। साथियों, मैं बात करने वाला हूं अपार आईडी के बारे में, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत बनाया जा रहा है। और इस अपार आईडी के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे थे कुछ साथियों के, और वो कह रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि ये क्या मैटर है और क्या इसको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और नहीं तो किस प्रकार से मना करना होगा इसके बारे में, और हाँ तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। इस प्रकार के कुछ लेटर्स, जैसे कि आप हरियाणा का ये लेटर देख पा रहे हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का ये लेटर है। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इन्होंने मूव किया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्हीं सबको भी गया है। डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उन सबको गया है हरियाणा के अंदर। और सिमिलरली इसी प्रकार के लेटर्स पूरे देश भर के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के जो ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ हैं, या तो उनके द्वारा या उनके साथ जुड़ी हुई कुछ सोसाइटीज़ या कुछ ऐसे संगठन जो उनको जानकारियां देते हैं या उनसे टच में रहते हैं या उनकी एजुकेशन पॉलिसी को जो है प्रभावित करते हैं, उन सभी के पास ये लेटर्स जा रहे हैं। और एक्चुअल में हो ये रहा है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, और इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, जहां पर जो है स्कूल्स के अंदर इस प्रकार के लेटर्स भेज रहा है। और ये जो लेटर्स हैं इनमें बात की जा रही है इसी अपार आईडी के बारे में। जैसे कि आप इसको अगर पढ़ेंगे लेटर को, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको देख पाएं और पढ़ पाएं। ये जो लेटर है ये 30/10/2023 का है, 30 सितंबर 2023 का है, और सभी एजुकेशनल ऑफिसर्स के पास गया है। और इसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी ऑफ स्टूडेंट्स। और इसमें यह कहता है, इट इज इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वाइड डीओ नंबर 234 2023 स्टैट्स डेटेड 11/10/2023 11/10/2023 को एक लेटर मूव किया गया, और उसके तहत ये लेटर जो है आगे 30 तारीख को दोबारा से मूव किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को, क्योंकि वो लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया इनके पास। और अब ये लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। ये जो अपार आईडी है, जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये कहीं कहीं आपको जुड़ा हुआ लग रहा होगा आधार कार्ड से। वो जो आधार कार्ड की आईडी आप लोगों की बनाई गई और जिसके लिए आपको लगातार कई जगहों पे बाउंड किया गया कि उसके बिना आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी, जिसके बिना आपको जो है कहीं पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपके कॉलेजेस में एडमिशन शायद नहीं होगा, स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, इस प्रकार की बातें कही गई, जो कि पूर्ण रूप से आज तक वॉलेंट्री है और उस आधार कार्ड के लिए आज तक कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ये एक अपार आईडी बनाई जा रही है स्टूडेंट्स के डाटा को क्लब करने के लिए, स्टूडेंट की डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको यूनिफाइड करने के लिए, उसको सिंगल एक जगह पे लाने के लिए ये एक अपार आईडी बनाई जा रही है। और इसमें ये कहते हैं कि ये गेटवे की तरह होगी और
इस गेटवे का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा डिजी लॉकर के साथ, यानी कि इस अपार आईडी के अंदर जो डाटा रहेगा वो डिजी लॉकर के साथ एसोसिएट हो जाएगा और डिजिटल फॉर्म में आपकी जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपके बच्चे हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, कितने उनके मार्क्स आए, क्लास में उनका क्या बिहेवियर रहा, किस प्रकार से वो जो है अपने खेल कूद के अंदर कार्यरत हैं, किस प्रकार से वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्होंने कौन से एग्ज़ाम्स दिए, किस प्रकार के उन्होंने जो है टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट में उनका किस तरह का कंडक्ट रहा है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स से आपस में उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी पूरी एक एक साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो कि रिकॉर्ड की जाएगी और वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक कर दी जाएगी इस अपार आईडी के साथ। और ये सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म में रहेंगी डिजिटल लॉकर के अंदर, इसकी ये बात करते हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपकी स्किल की जो ट्रेनिंग हुई है, जिस भी प्रकार की आपको स्किल्स दी गई स्कूल्स के अंदर, जैसा भी आपको समझाया गया, वहाँ पर कोई नई टेक्निक सिखाई गई, उसमें आपने कैसे नंबर लिए, क्या कुछ हुआ आपके साथ, वो हर एक चीज़ इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आजकल जो है कैमराज लग चुके हैं, सीसीटीवी कैमराज, जो कि फेस रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड हैं, और उनमें और भी नाइट विजन जैसी और कई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं एम्बेडेड आ रही है। वो डाटा भी आने वाले समय के अंदर इस अपार आईडी के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। और स्वाभाविक है कि अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन की जाएगी तो वो सभी चीज़ें, वो सभी डाटा जो है ऑनलाइन थेफ्ट, डाटा प्राइवेसी के तहत, या आप कहें तो साइबर बुलिंग जिसको कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर अगर आप बात करें तो उस हर एक तरह से उस डाटा के ऊपर खतरा रहता है। अगर वहाँ पे प्रॉपर प्राइवेसी नॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं किया जाता, प्रॉपर डाटा की सिक्योरिटी नहीं की जाती, अगर उस डाटा को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया जाता है, या किसी के पास वो भेज दिया जाता है, वो गलती से लीक हो जाता है, तो वो किस प्रकार से खतरनाक होगा आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अभी लेटेस्ट जो अभी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, और पिछले 4 सालों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि आधार कार्ड का डाटा जो है लीक हो रहा है। ये लाइव मिंट के ऊपर ही न्यूज़ आई है, आधार डाटा लीक, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ 81.5 करोड़ इंडियंस ऑन डार्क वेब। तो डार्क वेब के ऊपर आधार कार्ड का जो डाटा था वो सभी का सभी जो है सेल किया जा रहा है, और जिसके अंदर आपकी हर एक जानकारियां हैं। इतना ही नहीं, पासपोर्ट का डाटा, पासपोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो भी ब्रीच हो रहा है, और इसके ऊपर यूएस की एक एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, जिसका नाम है रीसिक्योरिटी। उन्होंने ये खुलासा किया अभी आज से एक दिन पहले, यानी कि 31 अक्टूबर की ये न्यूज़ है। और जिस प्रकार से ये डाटा ब्रीच हुआ है, आप सोच सकते हैं कि आधार कार्ड से आपकी क्या क्या जानकारियां जुड़ी हुई हैं। आधार कार्ड से आपने क्या सिम्स ले रखे हैं, कौन से मोबाइल फ़ोन्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो उससे अटैच है। आपने किसको कॉल किया, कहाँ कॉल किया, कब कॉल किया, कितने मिनट बात करी, वो हर एक डाटा जो है आधार कार्ड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच हो चुका ऑलरेडी। आगे अगर आप देखते हैं तो आधार कार्ड से आपके स्कूल्स के अंदर जो डाटा है वो जुड़ गया है। आधार कार्ड से आपके वोटर आईडी जोड़ने के लिए आपको लगातार आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, वो डाटा जो है ऑलरेडी जो है एसोसिएट कर दिया गया है। आधार कार्ड से आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अटैच किया जा रहा है। आधार कार्ड से आपके जितने भी और सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके वोटर कार्ड के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके और जितने लाइसेंसेस हैं जो सरकार आपको मुहैया कराती है, जो आप सरकार के माध्यम से लेते हैं, उन सभी डाटा के ऊपर जो है इस समय पे ब्रीच हुआ है। और इस ब्रीच के अंदर इन्होंने कहा है कि डाटा
द कॉम्प्रोमाइज डाटा माइट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। यही आईसीएमआर जिन्होंने डाटा प्रोवाइड किया था, वो जो कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर कोरोना काल के अंदर जो आपको वैक्सीन्स लगी थी, जो आप लोगों को दवाइयाँ दी गई थी, उस दौरान जो आपको जानकारियाँ दी जा रही थी, उसके लिए डाटा जो मुहैया कराने वाली एसोसिएशन कहें या रिसर्च की बॉडी अथॉरिटी जो थी, वो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च थी। और वो उस बॉडी के माध्यम से या उनके सिस्टम से ये डाटा लीक हुआ है आधार कार्ड का, ऐसी चिंताएं जताई जा रही हैं। ऐसा जो है लग रहा है इनको, इन कंपनीज को, ये जो इस तरह की जानकारियां दे रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब आधार कार्ड का डाटा इस प्रकार से डिलीट हो रहा है, इस प्रकार से जो है ब्रीच हो रहा है, इस प्रकार से जो है उसकी डार्क वेब के ऊपर सेल की जा रही है, डार्क वेब के ऊपर उसको जो है बेचा जा रहा है, और आपका जितना भी पर्सनल डाटा है, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपने कौन सी दवाई खाई, आपने कौन से इंजेक्शंस लगवाए, आपने कब कब डॉक्टर को किस चीज़ का चेकअप करवाया, आपने कहाँ पे डॉक्टर के पास किस चीज़ के लिए गए, कौन से डॉक्टर के पास गए, किस तारीख को गए, कितने बजे गए, वो हर एक डाटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस समय पे लिंक किया जा रहा है। और वो लिंक करने के बाद उसकी यूनिफाइड आईडी बनाई जा रही है, और यूनिफाइड आईडी जो है इस समय पे वो लगातार जो है खतरे के घर के अंदर है। तो ये हम वापस आते हैं इस अपार आईडी के ऊपर। तो इस अपार आईडी के तहत ये कहते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट होंगे वो इसके अंदर एसोसिएट हो जाएंगे, जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स होंगे वो सब उसके अंदर एसोसिएट हो जाएंगे, आपकी लर्निंग आउटकम्स जो भी आपने अचीवमेंट्स करी, या फिर ये कहते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर्स, मैं एक जगह पढ़ रहा था इसके अंदर, और वहाँ वो क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं कि जो आपको क्रेडिट स्कोर मिला है वो भी इससे एसोसिएट किया जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर की अगर आप बात करें तो अगर आप में से बहुत लोग जानते होंगे या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो जिस समय पे कुछ दवाइयाँ दी जा रही थी, बीमारी का दौर चल रहा था, या आप लोगों को एक दहशत का माहौल था पूरे देश के अंदर, उस समय पे बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनके पास कुछ इस प्रकार के लेटर्स आ रहे थे, उनको नोटिफिकेशंस, उनको स्कूल की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कोई एसएमएस आ रहा था, या व्हाट्सएप के ऊपर उनको मैसेजेस किए जा रहे थे कि आप अपने बच्चों की जो आपने वो सुई लगवाई है उसका जो है सर्टिफिकेट अपलोड करें, वो हमारे को शेयर करें। इतना ही नहीं, पेरेंट्स ने कौन कौन सी सुई लगवाई, पेरेंट्स ने कौन कौन से इंजेक्शंस लगवाए, वो हर एक जानकारी जो है आप वो स्कूल से साझा करें। और वो कह रहे थे कि ये डाटा हमको ऊपर भेजना है, और उसके लिए आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो उस प्रकार का सारा डाटा, वो डाटा देने के लिए कहा जा रहा था कुछ जगह पे, कुछ स्कूल्स के अंदर, कि अगर आप वो सप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे को 1 या 2 क्रेडिट स्कोर एक्स्ट्रा मिलेंगे। कई जगहों पे कहा था कि 5 आपके बच्चे को एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर मिलेंगे अगर आप वो डाटा मुहैया करा देंगे, या वो जानकारी आप साझा कर देंगे जल्द से जल्द, तो या इस पर्टिकुलर डेट तक। तो इस प्रकार से आप लोगों को लालच दिया जा रहा था, और आपको जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार की कोअर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा था, आपको एक प्रकार का लालच दिया जा रहा था, जिससे आपकी फ्री विल, जो आपकी स्वतंत्रता है, जो आप अपने निजी इच्छा से अगर कोई चीज़ लगवाएं या ना लगवाएं, उसकी आप कोई डायरेक्शन, आप कुछ फैसला लेते हैं, तो वो फैसला जो है प्रभावित करने के लिए आपको लालच दिया जा रहा था। उस समय पे आपको कहा जा रहा था कि अगर आप ये दे देंगे तो आपको, आपके बच्चे को इतने क्रेडिट स्कोर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये अपार आईडी के अंदर भी इसी प्रकार के क्रेडिट स्कोर्स और इन सब चीज़ों को जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग, और वन नेशन वन आईडी कार्ड, वन स्टूडेंट आईडी बनाने की बात कर रहे हैं। इसके बहुत से पॉजिटिव अगर आप कहें तो ऑलरेडी जो एसोसिएशंस, जो कंपनीज, जो अथॉरिटीज़, या जो थर्ड पार्टीज़, या जो कंपनी जिनको इसका ठेका मिल रहा है, जिनको कमाई होगी, वो ऑलरेडी आपको इसकी पॉजिटिव्स तो बता ही रहे हैं, या जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो आपको ऑलरेडी इसके पॉजिटिव्स और इसके जो
प्लस साइड है, प्रोज जो हैं इसके, वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं और ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ये परमानेंट आईडी है, परमानेंट नंबर है ये एक, और जहाँ तक हमें ये दिखा रहे हैं इसके अंदर कि ये 12 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा और इसके अंदर ये सारी जानकारियाँ रखी जाएंगी। तो क्योंकि परमानेंट है तो इसका क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा और किस प्रकार से ये आने वाले समय के अंदर आपकी जानकारियों का भंडार जो एक बन जाएगा, वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है आने वाले समय में, आपके बच्चों के लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, वो जानना इस समय पे बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने देखा कि आधार कार्ड के बारे में आपको जो है कहा गया था, उसी प्रकार से आज अखबारों के अंदर इस प्रकार की हेडिंग्स आ रही हैं। अब हर स्टूडेंट का अपार आईडी, पढ़ाई से जुड़ा हर डाटा इसमें रहेगा। तो ये कहते हैं हर एक डाटा उसमें चला जाएगा, और क्योंकि इसका नाम जो है बड़ा क्लासिकल नेम इन्होंने दिया है अपार, तो बड़ी अपार संभावनाएं हैं इसकी और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि पॉजिटिव जो बता रहे हैं और इसकी अगर नेगेटिव साइड देखें तो डेफिनेटली इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं आप लोगों को। आपके बच्चों के साथ साइबर बुलिंग की जा सकती है, आपके बच्चों का डाटा जो है किसी गलत कंपनी के पास जा सकता है, आपके बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग उस डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके बच्चों को ऑनलाइन फिशिंग करने के अंदर, आपके बच्चों के साथ कोई गलत बातचीत करने के अंदर, क्योंकि उनका डाटा अगर वहाँ कहीं लीक हो गया तो उनकी सारी जानकारियाँ, वो कितने एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आते हैं, किस प्रकार से वो उनका बिहेवियर रहता है, टीचर ने उसका क्या कंडक्ट लिखा है और स्पोर्ट्स में उनका क्या, किस तरीके का उनका रवैया रहा है, वो हर एक चीज़ जब उस डाटा के साथ जुड़ जाएगी तो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, जब आपका डाटा अगर लीक हो जाता है, जिस प्रकार से आधार का डाटा लगातार लीक हो रहा है और लगातार पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं कि आधार का डाटा लीक हो रहा है, और उसके साथ साथ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कहें या कुछ मार्केटिंग कंपनियां जो आपको किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं सुझाती हैं, तो वो आपके बिहेवियर को देखकर आपको किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जो है दबाव दे सकती हैं, आपको मजबूर कर सकती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की जा सकती है, क्योंकि आपका हर एक एक्शन जो है उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब वो एसोसिएट होने के बाद वो लोग आपका एक बिहेवियर का एनालिसिस करके आपकी प्रोफाइलिंग कर लेंगे, और वो प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको दिखाया जा सकता है कि आपके बच्चों को इस प्रकार के स्पोर्ट्स शूज़ की ज़रूरत है, नहीं तो वो जो है रेस के अंदर फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, या फिर कहा जाए कि बच्चों को इस प्रकार की जर्सीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को आने वाली ठंड पड़ेगी, उस ठंड के अंदर इस प्रकार के कपड़ों की ज़रूरत है। इस प्रकार से जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, जो मार्केटिंग करती हैं, वो उस मार्केटिंग के अंदर इन डाटाओं, इस डाटा का, इस प्रकार के डाटा का सेट का ये गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और ये डाटा जो है बेचा जा सकता है, किसी भी कंपनी के पास पहुंच सकता है। तो ये खतरे इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और आज का ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो इसमें लिख रहे हैं कि पीटीएम करने वाले हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करने वाले हैं पूरे हरियाणा के अंदर 2 और 3 नवंबर 2023 को सभी स्कूल्स के अंदर, जिसके अंदर वो पेरेंट्स को बताएंगे कि आप अपार आईडी बनवा लीजिए, इसके इतने इतने फ़ायदे हैं, और अगर आप बनवाएंगे तो इस तरीके से इनका आईडी बन जाएगा और वो एसोसिएट हो जाएगा डिजी लॉकर के साथ। लेकिन यहाँ पे इसमें ये भी लिख रहे हैं कि आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा, आपसे कंसेंट लिया जाएगा, जो बच्चे नाबालिग हैं उनके पेरेंट्स से साइन करवाया जाएगा उस कंसेंट फॉर्म के ऊपर कि हाँ, आप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आप शेयर करना चाहते हैं, और ये कंसेंट फॉर्म इस प्रकार का जो है वो दिया जाएगा ये माइनर के लिए। और सेम इसी तरीके से जो कंसेंट फॉर्म है मेजर जो बच्चे हो चुके हैं ये उनके लिए है। तो इस कंसेंट फॉर्म के अंदर वो कहते हैं कि
I so and so son of so and so, daughter of so and so, resident of this and this, मतलब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसका मेरा नाम ये है, मैं इसका बेटा हूँ या बेटी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। एक्टिंग इन कैपेसिटी ऑफ द गार्डियन, मतलब संरक्षक के तौर पे या कहें तो गार्डियन के तौर पे मैं अपने बच्चे के जो कि माइनर है उसका मैं वॉलंटरी कंसेंट दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी फ्री विल से, अपनी पूर्ण सहमति से, अपने सोच से समझते हुए, अपनी जागृति के साथ अपने बच्चे का आधार कार्ड नंबर, उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यानी कि वो कहाँ रहता है, और भी उससे रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम हो गया, उसकी उम्र हो गई, उसकी फ़ोटोग्राफ हो गई, और उसके जो भी और डेटाज़ हैं जैसे ब्लड ग्रुप हो गया उसका, वो सारी जानकारियाँ जो हैं जो कि आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी, और दूसरी कुछ जानकारियाँ जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जो है शेयर कर रहा है वो, फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ अपार आईडी फॉर द फॉलोइंग इंटेंट्स एंड पर्पसेस। तो कह रहा है कि उस अपार आईडी के साथ एसोसिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जो है वो दे रहा है इस सब जानकारियों को। और आगे लिखता है दैट आई अंडरस्टैंड दैट माई अपार नंबर मे बी यूज्ड एंड शेयर्ड फॉर लिमिटेड पर्पज एज मे बी नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वो कहता है कि ये मेरी सब जानकारी जो अपार नंबर की हैं मे बी यूज्ड एंड शेयर फॉर लिमिटेड पर्पज, लिमिटेड पर्पज के लिए की जा सकती हैं, अब तो की ही जाएंगी, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज और बहुत सी एसोसिएशंस, बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स चलाती हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं, जो कई बाहरी देशों की भी कंपनीज़ हैं, वो जो हैं इसके साथ आजकल एसोसिएटेड हैं। और आज के दिन आपको पता है कि एजुकेशन के अंदर बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है, और एजुकेशन के अंदर हर एक बच्चा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, तो हर एक बच्चा जब एजुकेशन करने के लिए जाएगा तो एक बड़ी संभावनाएं, अपार संभावनाएं जो हैं खुल जाती हैं इन बड़ी कंपनीज़ के लिए। तो नेचुरल है कि वो सब डाटा उन कंपनीज का शेयर किया जाएगा, और यहाँ पे ये कह भी रहे हैं कि वो शेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ फॉर द पर्पजेज एज मे बी नोटिफाइड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है आपको नोटिफाई करे, हो सकता है, वो कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो करे आपको कि हाँ इस पर्पज़ के लिए हम आपके डाटा को इन कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हैं या इस थर्ड पार्टी कंपनी से हम शेयर कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द एजुकेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, टाइम टू टाइम जो है वो आपको नोटिफिकेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो उनकी डिस्क्रिशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं मे बी नोटिफाइड, वो आपको नोटिफाई करें ना करें वो उनकी इच्छा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंसेंट को लेकर जो, अगर लीगल सिस्टम की अगर आप बात करें तो उसमें एक मैक्सिम बोला जाता है, कंसेंसस फैक्टिव लेजिम, यानी कि कंसेंट मेक्स लॉ, अ कंसेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लॉ बिटवीन द पार्टीज एग्रीइंग टू बी बाउंड बाय इट। यानी कि अगर आपने एक बार कंसेंट दे दिया तो वो जो व्यक्ति है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो माना जाता है कि उसने आपसे स्वीकृति ले ली, और वो आपकी स्वीकृति जो थी विदाउट प्रेशर थी, वो आपकी फ्री विल से आई थी, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोअर्जन नहीं किया, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, आपके साथ कोई जो है आपको ब्राइब नहीं दी गई, और आपको कोई डिसएडवांटेज जो है उस चीज़ के लिए नहीं भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार की जो है एक अंडरस्टैंडिंग मान ली जाती है उस कंसेंट के लिए। तो वो कंसेंट देने से पहले अगर आप किसी को भी देते हैं तो आप कम से कम 10 बार सोचें कि आप किस चीज़ का कंसेंट दे रहे हैं और उसके दूरगामी क्या प्रभाव होने वाले हैं। आगे ये कहते हैं, फर्दर आई एम ऑल्सो अवेयर दैट माई पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, name, address, age, date of birth, gender and photograph may be made available to entities engaged in various educational activities such as UDISC database, scholarship, maintenance, academic records and other stakeholders like educational institutes and recruitment agencies। यानी कि दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हो गई। आप समझे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का मतलब, जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, जो भी कंपनीज नौकरियां लगवाती हैं, उन सभी कंपनीज के साथ इस डाटा को शेयर किया जा सकता है और किया जाएगा ही। तभी तो ये सब कुछ लाया जा रहा है, जिस प्रकार से आधार का डाटा शेयर किया जा रहा है उसी प्रकार से इस डाटा को भी
नेचुरली शेयर किया जाएगा। आगे ये कहता है, आई ऑथराइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू यूज माई आधार नंबर फॉर परफॉर्मिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन विद द UIDAI एज पर प्रोविजंस ऑफ द आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016 for the aforesaid purpose, and understand the UIDAI will share my eKYC details or response of yes with the Ministry of Education for successful authentication। यानी कि आपका जो सारा डाटा है आधार कार्ड से रिलेटेड, वो सारा डाटा जो है आप कंसेंट दे रहे हैं कि वो जो अथॉरिटी है वो सारा का सारा डाटा जो है UIDAI से उठकर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा, और वो कंसेंट की फॉर्म में, eKYC की फॉर्म में यस में टिक करेंगे कि हाँ आपने उस चीज़ का कंसेंट दे दिया है। आगे ये कहता है, आई अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय मी थ्रू कंसेंट शैल बी केप्ट एज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द सीक्रेसी ऑफ द सेम शैल बी maintained and this information shall not be divulged at any time to any third party except as may be compelled by the court or agency by the competent jurisdiction or as otherwise required by the law, and shall also ensure that same is not disclosed to any person voluntarily, accidentally or by mistake। ये कहता है कि ये सारी जानकारियां जो हैं ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, इसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी, जो भी आप डाटा शेयर कर रहे हैं उसकी, और ये जो है इसकी सीक्रेसी जो है वो मतलब सामने नहीं लाई जाएगी। जिस प्रकार से एक जर्नलिस्ट होता है, अगर उसके पास कुछ सोर्सेज होते हैं तो वो अपने सोर्सेज को जो है वो सामने नहीं लाता है, वो सोर्सेज जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है, उस प्रकार से इसको डिवल्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी समझते हैं कि ये सब प्रॉमिसेस तो किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कितने पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, इसके लिए किस प्रकार से पूरी योजनाएं बनाई गई हैं, इसके लिए किस प्रकार से डाटा सिक्योरिटी के नॉर्म्स बनाए गए हैं, डाटा प्राइवेसी के लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, और किस प्रकार के जो है सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर पॉलिसीज़ इन्वॉल्व हैं तो वो किस प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसी बाय स्टेटमेंट है या पॉलिसी बाय डिज़ाइन है, पॉलिसी बाय कमिटमेंट है या पॉलिसी बाय इनहेरिटेंस है। तो ये जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारियाँ आप तक नहीं है। और जिस प्रकार से आधार का डाटा लगातार शेयर हो रहा है, आधार का डाटा जिस प्रकार से जो है ब्रीच हो रहा है और वो जो है ओपन वेब के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर जो है बेचा जा रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं खतरा जो है साफ तौर पे दिखाई देता है। कंसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो ये जो माइनर के लिए कंसेंट फॉर्म है, इसमें ये गार्डियन से यहाँ साइन करवाएंगे। आगे ये कहता है, आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन विड्रॉ माई कंसेंट टू ऑल और एनी पर्पज एट एनी टाइम बाय और ऑन विड्रॉल ऑफ माई कंसेंट द प्रोसीडिंग ऑफ माई शेयर्ड इन्फॉर्मेशन विल stop. However, any personal data already been processed shall remain unaffected on such withdrawal of consent। यानी कि आप आने वाले समय में कंसेंट विड्रॉ तो कर सकते हैं अगर आपने एक बार दे दिया, लेकिन जितना डाटा आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं उसका वापस आना असंभव है, वो नहीं आ पाएगा। और उस कंसेंट को विड्रॉ करने से वो डाटा आपका रुक जाएगा शेयर होना, या वो डाटा जो है उन कंपनियों के पास चला जा चुका है, जो वो डाटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा या हट जाएगा। इसकी कोई जो है यहाँ पे गारंटी जो है ये डिपार्टमेंट या कहें तो मिनिस्ट्री जो है नहीं लेती है। आगे मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि लीगल सिस्टम के अंदर एक और मैक्सिम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंसेंसस टॉलिटिम एररम, यानी कि कंसेंट रिमूव्स एन एरर। अ पर्सन कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू समथिंग ही हैज़ कंसेंटेड टू। यानी कि एक बार अगर आपने उस चीज़ के लिए स्वीकृति दे दी तो आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं वो चीज़ दे चुका हूँ, क्योंकि आप अपने खुले मन से, अपनी अंतरात्मा से आप जो है उस चीज़ के लिए स्वीकृति देते हैं, और देने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो गलत हुआ है,
हाँ, आपसे फ्रॉड हो सकता है, आप उस चीज़ के लिए क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेंट ये प्रूव हो जाता है कि आपको पूरा टाइम दिया गया था सोचने समझने के लिए, आप पढ़ सकते थे, आप समझ सकते थे, और फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा और अगर आपको नहीं चीज़ डिस्क्लोज़ की गई थी तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आपको बताई गई थी तो अगर आपने कंसेंट दिया तो वो आप जो है उस चीज़ के लिए कल को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं था। अगर आपने दे रखा था तो वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और उस डाटा को जो है शेयर किया जाएगा। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे ये कुछ इस अपार आईडी की जो फ़ायदे बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। कहते हैं वर्क एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ईजी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहते हैं स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करना एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ईजी हो जाएगा, जो कि पहले भी हो रहा था। इन्होंने थोड़ा सा उसको डिजिटलाइज कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इसी के माध्यम से ही ट्रांसफ़र आप बच्चों को कर पाएंगे या स्कूल्स जो हैं उसके चेंज कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसके बिना भी चेंज कर पाएंगे। जिस प्रकार से पहले हो रहा था वो अब भी होगा, और आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं दे सकते वो लोग कि आप जो है इसको बनवाए नहीं तो आपका बच्चा कल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को जो है उसकी मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को जो है स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या इस प्रकार के कोई भी चीज़ों के लिए आपको रोका नहीं जा सकता अगर आप ये नहीं बनवाते हैं तो। ये कहता है इट विल एम्पायर द स्टूडेंट्स विद ऑन आईडी, यानी कि स्टूडेंट्स का खुद का एक आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, एक आईडी बन जाएगी स्टूडेंट्स की खुद की। तो मैं तो कहूँगा कि ये एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट स्टेटमेंट है इस अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट्स का आईडी तो पहले भी बना हुआ है, स्कूल्स के अंदर पहले भी आईडीज़ बनते हैं, और स्टूडेंट्स के उसके अलावा और भी बहुत से आईडीज़ हैं जो कि बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बच्चे वयस्क हो चुके हैं उनका वोटर कार्ड है, या फिर और भी जितने भी जैसे राशन कार्ड बच्चों का बना होता है कईयों का, और जितने भी और सरकार के द्वारा दिए गए आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं या समाज के द्वारा बनाए गए आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होते हैं वो उनके पास ऑलरेडी होते हैं। अगला ये पॉइंट इसमें कहते हैं द यूनिक आईडी विल बी लाइफ लॉन्ग एंड हेल्प इन एक्सेसिंग द एजुकेशनल रिसोर्सेज टू। कहता है ये लाइफ लॉन्ग नंबर होगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बन जाएगा और सदा सदा के लिए रहेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो कह रहे हैं इसमें हेल्प इन एक्सेसिंग दी एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो इसके अंदर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि अगर आप एजुकेशनल रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं और अगर आप वो लेते हैं तो ये किसी भी प्रकार से आपको नहीं कहा जा सकता कि भाई आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप इन बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकते या आप इस ऑनलाइन डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको कोई रोकता है इस प्रकार की चीज़ के लिए, आपको कोई दबाव डालता है इस प्रकार की चीज़ के लिए, तो आप हमसे बात कीजिए उस चीज़ के लिए। और डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया हमारी जो पूरे विंग्स हैं, जो साथी हैं, वो ऑल ओवर इंडिया जो हैं इस समय पे एक्टिव हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम डेफिनेटली आपकी उसमें मदद करेंगे। अगली बात जो इसमें कहते हैं कि अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एजुकेशनल प्रोग्रेस जो है और अचीवमेंट जो है ये पहले भी जो है बच्चों की ट्रैक होती थी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बिना भी आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग दी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स एंड मेन स्ट्रीमिंग देम। तो इससे पहले जो डाटा था वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कहा जा रहा है इसमें कि इसके माध्यम से ही होगा, तो ऐसा नहीं है। अपार आईडी विल बी ए गेटवे फॉर एक्सेसिंग डिजिटल लॉकर। तो मैं कहना चाहूँगा डिजिटल लॉकर जितनी चीज़ें डिजिटलाइज की जाएंगी उतना ही उनका खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ फ़ायदे हैं डेफिनेटली, लेकिन उनका कुछ खतरा भी बढ़ जाता है कि वो डाटा लीक हो जाए या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या फिर आपका मोबाइल जो है वो चोरी हो जाए और वो डाटा जो है वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, खतरे जो हैं एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि आधार कार्ड इस अपार आईडी से डिजिटल लॉकर के अंदर वो चीज़ें चली जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, तो ये उसके बिना भी ऑलरेडी हो रहा है। जितना हमारे को जानकारी है हमने देखा है कि मार्कशीट्स जो हैं और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी
डिजिटल लॉकर के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं और वो किए जा सकते हैं ऑलरेडी। लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, वो आप सोच समझ के ही जो है फ़ैसला लें। स्टूडेंट्स कैन यूज़ द क्रेडिट स्कोर फॉर देयर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं, और ये क्रेडिट स्कोर हो सकता है आने वाले समय में वो सोशल क्रेडिट स्कोर का जो है नाम ले ले, क्योंकि सोशल क्रेडिट स्कोर का एक पूरा जो है एक नैरेटिव तैयार हो चुका है। सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए एक पूरा का पूरा बेस तैयार किया जा रहा है, पूरे देश भर के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस समय पे सोशल क्रेडिट स्कोर का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा सोशल क्रेडिट स्कोर का अगर आपने एग्जाम्पल देखना है तो आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना में किस प्रकार से सोशल क्रेडिट सिस्टम जो है वो चल रहा है, और उस सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत लोगों की हर एक गतिविधि उसमें ट्रैक की जाती है, वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो हर एक चीज़ उसमें एसोसिएट की जाती है। तो ये जो है किस प्रकार से काम करेगा, और आने वाले समय में CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से भी एसोसिएट किया जा सकता है, जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों को जानकारी ना हो, तो आप लोग दूसरी सभी वीडियोस देखें, समझें, ये बहुत ज़रूरी है इस समय पे। और आपके बच्चों के भविष्य के लिए और आप लोगों के भविष्य के लिए जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय पे कि आप समझें इन बातों को, कि आने वाले समय में इन सब बातों का आपकी लाइफ के ऊपर किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से इन सब चीज़ों का आ, दुरुपयोग किया जा सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने के अंदर, आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करने के लिए। अगला पॉइंट इसमें कहते हैं अपार आईडी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मल्टीपल यूज केसेस। एग्जाम्पल For example, entrance test conducted by NTA, admission, scholarship disbursement, transfer of government benefit, issue of awards, recognition, etc. for student, teachers and other users। तो यानी कि ये जो नंबर है ये कहते हैं स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, इशू ऑफ अवार्ड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किया जा सकता है। तो मैंने आपको क्लियर किया कि ये कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, कोई फेवरिज्म नहीं किया जा सकता, कोई पक्षपात नहीं कर सकते कि अगर आपके पास ये अपार आईडी है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की चीज़ कभी भी नहीं की जा सकती। तो अगर आपको कोई करता है, इस प्रकार से दबाव देता है, या आपको वो कह रहा है कि अगर आप ये नहीं बनवाएंगे तो आपकी ये सब चीज़ें रुक सकती हैं, तो या तो वो इल इन्फॉर्म्ड है, या फिर वो आपको जो है इल इन्फॉर्म कर रहा है, या तो उसके पास जानकारी है नहीं, उसको खुद को समझ नहीं है, या वो आपको जो है जानबूझ के अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए या फिर किसी और कारणों से जो है आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। लेकिन ये आपकी फ्री विल है कि आप इस कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन करें या ना करें। आप साफ साफ सीधा सीधा मना भी कर सकते हैं उस एक एजेंसी को, उस कंपनी को, किसी भी स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, और किसी भी एक इंस्टीट्यूट को आप मना कर सकते हैं कि आपको ये अपार आईडी नहीं बनवाना, क्योंकि ये आपकी इच्छा के तहत ही बनाया जा सकता है। तो बहुत से और कंसर्न हैं इसको लेकर, जो कि हम आने वाले समय के अंदर आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है आपकी निजी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है, आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो आपकी फ्यूचर आपका जो होगा उस पर किस प्रकार से इसका जो है प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये सब जानकारियाँ बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन वीडियोस को जल्द से जल्द जो है वहाँ पहुँचा दें। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, और जितने भी ग्रुप्स हैं इनके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे, या और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जल्द से जल्द पहुंचाएं, ताकि माता पिता के पास और उन बच्चों के पास ये सारी लीगल इन्फॉर्मेशन, ये कानून की जानकारियाँ, ये किस प्रकार से आप उन चीज़ों को मना कर सकते हैं, आपके क्या अधिकार हैं, वो उन तक पहुँचें और वो सही तरीके से उस चीज़ को जो है डील कर सकें। और किसी भी समय पे अगर उनके साथ कोई दबाव दिया जाता है तो वो इस चीज़ से निपट सकें।
साथियों, इसी के साथ आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप में से जो साथी अपनी कुछ क्वेरीज़ हैं, जिनकी जो लोग चाहते हैं कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके स्कूल्स में प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कॉलेजेस में जो है किसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, या कोई और आपको इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर, या फिर कुछ और समस्या अगर आपकी पैदा हो रही है, तो आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9467960600। आप इस पे व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ये ज़रूर मेंशन कर दें आप। और हम आपकी जो भी संभव मदद हो सकती होगी हम आपकी डेफिनेटली करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं जागरूक हों और अपने अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू करें। नमस्ते।